Okay, so if I'm taking a question, make 3 students out of 10 to sit on 3 chairs. So I have got 3 chairs are there and I have got 10 students are there standing, right? A, B, C up to J, 10 students are there. How I can make them sit in these chairs? So total number of ways will be first chair के लिए 10 options are there. For second 9 options are left. For third 8 options are left. You know, this is my answer. But then we said this is also possible in other way. That is, first I'll select 3 students कि कौन से 3 बैठेंगे पहले वो सिलेक्ट करते हैं, बिठाना तो बाद में है ना, सिटिंग विल बी आफ्टरवर्ड. सो सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10. फिर उन 3 स्टूडेंट को हम उन 3 चेयर्स पर कितने वे में बिठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वे में. ठीक है, और ये दोनों आंसर हमारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है ना. बोथ द आंसर्स आर equal. So we are getting 10 into 9 into 8 is equals to selection of 3 students, selection of 3 out of 10 into 3 factorial. This thing we can also write as 10 factorial by 7 factorial, and this 3 factorial goes on the other side. This is selection. Selection of what? Selection of 3 out of 10. And this is denoted by 10C3. 10C3 means selection of 3, combination of 3 out of 10. ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर मैंने आपसे पूछा 10C7, तो 10C7 will be 10 factorial by 7 factorial 3 factorial. Both the things are same. ठीक है, so what we are getting is 10C7 is equals to 10C3. दोनों same है. राइट ये सी का मीनिंग क्लियर है सबको? यस सर. ओके, सो यहाँ पर लेट्स टेक दिस. ठीक है, ये जो हम लिखते हैं 10C7 है ना, दिस इज ऑल्सो रिटर्न डाउन एज C10,7. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये वाला जो यूज है ये कम यूज होता है. दिस फॉर्मेट इज यूज्ड मोर. नाउ NCR, ठीक है, NCR, this is 10 factorial by 7 factorial 3 factorial. Therefore NCR is n factorial by r factorial n minus r factorial. This is one. Second is NCR is equals to NC n minus r. Both are equal. NC0, NC0 is n factorial by 0 factorial n minus 0 factorial, which is 1. ठीक है, अगर हमें गिवन है 10 स्टूडेंट्स आर देयर, उसमें से मुझे कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करना है, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू इट? ओनली वन वे. 10 स्टूडेंट है, मुझे सारे के सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं. डू आई हैव एनी अदर ऑप्शंस? नो, ओनली वन वे इज देयर. ऑल ऑफ यू सिट डाउन ऑन बस, लेट्स गो फॉर पार्टी. ठीक है, देयर इज नो अदर वे. सो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल विच इज 1. ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा. NC1, NC1 is n, NCn minus 1, this is n. ठीक है, ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे. प्लस देयर इज सम मोर रिलेशंस आर देयर इन NCR which we'll see later on. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ओके, let's move ahead. In how many ways 4 boys can be chosen from 7 boys to make a committee? Now here only selection is there. Doesn't matter कि पहले मैंने सारांश को सिलेक्ट किया या अर्जुन को सिलेक्ट किया या रियाना को सिलेक्ट किया है ना, doesn't matter at all. ठीक है,
only 4 boys to be selected. No order, no standing, no first, second, third. ठीक है? If order does not matter, what you will see is you will take combination. Selection of 4 out of 7, that is 4C7. मैंने कहा मिस्टेक की है? सर 7C4 होगा। 7C4 है ना? 7 should come first. 7C4. एग्रीड? अब मुझे फटाफट बताओ कि अगर मैं बोलूं ना आंसर 7C3 है, आप बोलोगे हाँ जी सर 7C4 और 7C3 दोनों सेम ही होते हैं, है ना? ऊपर हमने किया NCR और NCR-1 N-R बोथ आर सेम, है ना? अभी किया ना हमने NCR एंड NC N-R बोथ आर सेम. ये 7C3 की जस्टिफिकेशन दो मुझे. 7C3 कैसे करेक्ट आंसर है? सेम है, इक्वल है, बात अलग है, बट जस्टिफिकेशन है ना. हाउ 7C3 इज करेक्ट? जब मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं तो 7C3 कैसे करेक्ट हुआ? जो 3 बच्चों के रह जाएंगे वो. हाँ जी, instead of selecting those 4 who will sit on the bus, I can do it other way. Let's select those 3 who will not sit on the bus. ठीक है, मैंने उन 3 बच्चों को जिनको लात मारनी है उनको पहले सिलेक्ट कर लिया, बाकी जो बचेंगे वो अपने आप बस में बैठ जाएंगे. तो 7 में से आप 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करो या 3 सिलेक्ट करो, बात एक ही है, राइट? यस सर. Okay, so this part is clear. Let's take some more. In how many ways 12 boys can be seated in 10 chairs in a row so that 2 boys are always left standing? हाँ जी 12 boys को 10 chairs पर बिठाना है. पहले तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं? पहले क्या सिलेक्ट करें? Number of ways in which boys can be selected. हाँ, कौन से 10 boys, है ना? वो कौन से 10 boys होंगे जिनको बिठाना है? तो या तो हम बोल दें 12C10 और या फिर बोल दें वो 2 जिनको लात मारनी है हमें 12C2. बोथ आर सेम, है ना? अब ये 10 लोग तो हमने सिलेक्ट कर लिए, बट दिस इज नॉट माय आंसर. मेरा आंसर क्या होगा? सर सब 10 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं. वेरी गुड. ये तो अभी सिर्फ सिलेक्ट किए हैं, चेयर के आसपास खड़े हैं, अब इनको चेयर में बिठाना भी है. ठीक है, तो इनटू 10 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पर अब ऑर्डर मैटर कर रहा है. हमने पहले सिलेक्ट किए विच 10 एंड देन वी मेड देम सिट ऑन द चेयर. ठीक है, and this answer will be same as 10 chairs are there. On these 10 chairs, first chair number of ways is 12, then is 11, 10 and so on. ठीक है, जो हमने previous classes में किया और ये जो solution है both are same, only thinking process is different. From a group of 7 boys and 5 girls, a team consisting of 4 boys and 2 girls is to be made. In how many different ways it can be done? Chat box में आंसर सभी आंसर करेंगे. Even if you don't know, just type DK, that's I'll accept that. Please answer it. ठीक है, C की फॉर्म में है. अगर आपने लिखा 5C3, I will take it as if you have written down 5C3. ठीक है, answer it in form of C. हाँ जी वैभव, very fast, very good. Sachet, mistake. सचित, ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बेटा, ठीक है? मल्टीप्लाई होंगे. हाँ जी, नंबर ऑफ बॉयज कौन से सिलेक्ट किए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता कि गर्ल्स कौन सी है ना. सो दैट इज नॉट डिपेंडेंट, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है सिद्धांत, ठीक है, आप इंचार्ज हो बेटा, माइक पे आ जाओ. आप इंचार्ज हो. 7 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं. ठीक है, मैंने बोला 7 बॉयज में से 4 बॉयज सिलेक्ट करो. कितने वे में करोगे बेटा सिलेक्ट? हाँ जी 7C4. 7C4 में आपने 7 बॉयज सिलेक्ट किए और 5 में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो कितने फेज में? 5C2. 5C2. बोथ आर एक्सक्लूसिव है ना, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट. राम घनश्याम को सिलेक्ट किया तो
डज नॉट डिपेंड कि सीता सेलेक्ट होगी या नहीं होगी, है ना. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो फॉर ईच वे यू आर सिलेक्टिंग अ बॉय, देयर आर 5 C2 ways of selecting a girl. This is your answer. इसको सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल into 5 factorial by 3 factorial 2 factorial, right? So this is 35 into 10. Total number of ways are 350. ओके सर. ठीक है, सिलेक्शन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. From a class of 15 students, 10 are to be chosen for picnic. और 2 स्टूडेंट ऐसे अड़ियल हैं, वो कह रहे हैं जाएंगे तो साथ में, वरना नहीं जाएंगे. So in how many ways these 10 students can be selected? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड वैभव. तो ये हम यहाँ पर थोड़ी सी मिलीजुली सरकार चलाते हैं. हाँ जी, कैसे करना चाहिए एनीवन? सर शायद 15 उसको से 12 box ले करेंगे. लेंगे. ओके, सारांश कह रहे हैं 15 से 12. ओके, एनीवन एल्स? आर्यन, यू आर सेइंग समथिंग? सर उन 2 स्टूडेंट्स को एज 1 यूनिट ले लेंगे. उन 2 स्टूडेंट को हमने 1 यूनिट ले ली, तो आंसर क्या होगा फिर आपका? 15 से 11. So वेरी गुड. 15 से 11 हो जाएगा. थिंक ऑन इट. 14 से 10 होना चाहिए ना. 14 से 10. आर यू श्योर? लेट्स सी हियर. ठीक है, पहले हम आर्यन की बात करते हैं. आर्यन कह रहे हैं सर 15 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमें 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है. ठीक है, इनमें 2 स्टूडेंट्स कह रहे हैं विल गो टुगेदर. सो हमारे पास कौन से रह गए? हमारे पास 13 स्टूडेंट रह गए, और ये जो 2 स्टूडेंट्स थे इनको हमने एक बॉक्स में बांध दिया है. तो अब हमारे पास 15 एलिमेंट्स की जगह हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट विद अस? 14 एलिमेंट्स आर लेफ्ट. ठीक है, हमारे पास सिर्फ 14 एलिमेंट्स है. बट स्टूडेंट्स अब कितने सिलेक्ट करने हैं हमें? अब स्टूडेंट्स कितने सिलेक्ट करने हैं? आप 10 स्टूडेंट्स तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 14 में से अगर मैं 10 सिलेक्ट कर रहा हूं और उस 10 में से जो है एक ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया और साथ में 9 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो ये तो 11 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर में से 2 स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं. हाँ जी, पंगे बढ़ गए ना यहाँ पर? यस. Yes, sir. सो व्हाट वैभव इज सेइंग इज कि सर एक स्टेप में करना जरूरी थोड़ा ना है. पहले तो हम कंडीशन ले लेते हैं कि वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं, लेट दोस 2 स्टूडेंट्स और A and B. ठीक है, केस 1, पहला केस कौन सा बनेगा? बताओ बताओ. सर जब वो सर A जाएंगे. और B 10 है और है. A and B included. A and B included है. इंक्लूडेड है तो वो तो बस में जाकर ऑलरेडी बैठ गए. हमने कहा भाई तुम दोनों तो जा ही रहे हो. तो अब कितने स्टूडेंट बचे? 13. उनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? 8. तो 13 C 8. सेकेंड केस, A and B excluded. वो दोनों बाहर चले गए. कितने स्टूडेंट बचे? 13. सिलेक्ट 13. किसने करने हैं? 10. 13 C 10. ठीक है, so this is what answer Vaibhav has given. Answer is 13 C 8 plus 13 C 10. And you understood? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. ठीक है, all of you have got very good intelligence बेटा. और PNC is only thinking process. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. उसके बाद भी आई एम टेलिंग यू PNC is such a subject कि you know even I can get stuck on some questions क्योंकि that needs some other thinking, है ना. I may take 15 minutes or half an hour to solve that question. So PNC में कोई गारंटी नहीं है कि कोई मास्टरी करके बैठा हुआ है. ठीक है,
but only thing is when you solve lot of questions, so concepts starts becoming clear, how to approach a particular question. Select 8 students out of 5 boys and 5 girls for a quiz such that at least 8 girls are there. So कम से कम 8 girls बोल रहा है, ठीक है? तो केस बनेंगे हमारे, कौन से केस बनेंगे? पहला केस, Sir, when 4 girls are there. बहुत गर्ल्स नहीं, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ लो. 5 No girls. बॉयज और 5 गर्ल्स में से 8 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं और कम से कम 4 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है? हाँ जी, पहला केस. Sir, 4 girls and 4 boys. हाँ जी, एग्जैक्टली 4 girls and 4 boys. And second case will be 5 girls and 5 3 girls boys. and 3 boys. 3 boys. Very good, very good. तो यहाँ पर 4 girls आप select कर रहे हैं out of 5. So this is 5C4 into 4 boys you are selecting. So 5C4. ठीक है? Then out of 5 girls you are selecting 5 girls. That is 5C5. 5C5 is nothing but 5C5 कितना होगा बेटा? 5C5 is same as NCN. NCN is 1. ठीक है? 5 गर्ल्स हैं, पांचों जाएंगी कितने वेज में? ओनली 1 वे. एंड आउट ऑफ 5 बॉयज ओनली 3 कैन गो. ठीक है? इसमें एक और अप्रोच हो सकती है, दैट इज नंबर ऑफ वेज इज टोटल माइनस कौन सा केस? 5 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स. राइट? जो हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास ऑप्शंस ही लिमिटेड है. हमारे पास 3 ऑप्शंस बन रही है. जो टोटल का केसेस है कि 5 बॉयज और 4 बॉयज और 3 बॉयज, है ना, यही केसेस बन रहे हैं हमारे पास. और सेम गोज विद गर्ल्स, क्योंकि ग्रुप जो जा रहे हैं उसमें या तो 5 गर्ल्स होंगी या 4 गर्ल्स होंगी या 3 गर्ल्स होंगी. नो अदर केसेस देयर. ठीक है? आप इन दोनों को ऐड करें या फिर ये टोटल क्या होगा हमारा? 10 में से आपने 8 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, माइनस कौन सा कर रहे हैं? जब 5 बॉयज थे और 1 गर्ल थी, दैट इज, और 3 गर्ल्स थी, 5C3. Agreed, understood? Yes, sir. Both are correct. हाँ जी वैभव. चलो आंसर चैट बॉक्स. आप सी की फॉर्म में आंसर देंगे. हाँ जी वैभव फर्स्ट. ओके, सभी सेम टाइप की मिस्टेक कर रहे हैं. लेट्स सी हियर. सो सचित, आप पहले मुझे अपना आंसर एक्सप्लेन करें बेटा. आपने कहा 100C80 दैट इज टोटल केसेस माइनस केस जहां पर 50C31 लिखा है आपने इनटू 50C29. ये कैसे आया बेटा? सर एटलीस्ट 30 गर्ल्स हैं तो मतलब एक गर्ल अगर हम हटा देंगे तो 29 वो पॉसिबल नहीं था, तो टोटल माइनस नॉट पॉसिबल. तो आगे टोटल माइनस व्हाट नॉट पॉसिबल? कि 29 गर्ल्स जो है वो पॉसिबल नहीं है ना, वो अलाउड नहीं है ना? यस सर. अगर मैंने 29 गर्ल्स ली हैं और टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो 80 होने चाहिए, तो 29 गर्ल हैं तो बॉयज कितने हो गए बेटा? बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज 51 होने चाहिए ना फिर, तभी तो टोटल 80 होंगे. यस सर. तो यहां पर मेरे को टोटल बॉयज ही मेरे पास 50 अवेलेबल है. यू गेटिंग माय पॉइंट?
नहीं, सारांश इधर ध्यान दो, आर्यन वर्मा। ठीक है बेटा, आप देखो एटलीस्ट 30 गर्ल्स बोल रहा है वो, है ना, कि कम से कम 30 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, सो गर्ल्स की मिनिमम वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप मैक्सिमम बॉयज ले लें कि बॉयज मैक्सिमम कितने जाएंगे, 50 बॉयज जाएंगे। ठीक है, तो आई एम सेइंग बॉयज से रिलेटेड मैक्सिमम 50 जा सकते हैं, तो गर्ल्स जो है वो मिनिमम कितनी जाएंगी, मिनिमम 30 गर्ल्स जाएंगी। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें मिनिमम 30 गर्ल्स होंगी। जैसे आप बॉयज को कम करना शुरू करेंगे, गर्ल्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो रही हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट 30 गर्ल्स, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए 80 स्टूडेंट्स का, उसमें कम से कम 30 गर्ल्स तो होंगी। ठीक है, सो माय आंसर इज 100 C80, दिस इज माय आंसर। हाँ जी, अंडरस्टूड। परिचय समझ में आया बेटा? यस सर, थोड़ा बहुत। ओके भाई, मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैंने 80 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, कितने वे में हम उनको भेज सकते हैं कि सच दैट एटलीस्ट 1 गर्ल शुड बी देयर। तो आप कहोगे सर 50 तो है बॉयज बस, तो एक गर्ल्स कम से कम जाएगी एक गर्ल, तो वो जो कम से कम एक है दैट इज एक्चुअली 30 गर्ल्स आ जाए, मिनिमम 30 गर्ल्स विल गो। 30 या 30 से ज्यादा गर्ल उसमें सिलेक्ट होंगी। यस सर। ओके सर। अब यहाँ पर देखते हैं ना, सिलेक्ट 80 स्टूडेंट्स, 50 बॉयज 50 गर्ल्स, सच दैट एटलीस्ट 31 गर्ल्स आर देयर। तो यहाँ पर अब पंगे हैं ना, पंगे कहाँ से हो रहे हैं, हमने बनाया बॉयज और गर्ल्स, सो बॉयज 50 तो मतलब गर्ल्स, मैक्सिमम बॉयज वाला केस नहीं होएगा। हाँ जी, तो बॉयज 49 गर्ल्स 31, बॉयज 48 गर्ल्स 32। तो यहाँ पर ये सारे केसेस अलाउड हैं, बस ये वाला अलाउड नहीं है। तो हमारा आंसर होगा टोटल 100 में से हमने 80 को सिलेक्ट किया, माइनस जो अलाउड नहीं है। अलाउड कौन सा नहीं है, 50 बॉयज में से हमें 50 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, इनटू 50 गर्ल्स में से हमें 30 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, दिस इज नॉट अलाउड। यस सर। हाँ जी अभिराज। ओके आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है बेटा, यू आर पार्टिसिपेटिंग अदरवाइज आप बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करते हो। टॉपिक समझ में आ रहा है अभिराज? ओके, आई थिंक सम इश्यूज विद माइक। In a bag there are 5 red balls, 3 white balls and 4 black balls. 4 balls are drawn from the bag. Find number of ways in which at most 3 red balls are selected. ज्यादा से ज्यादा 3 रेड बॉल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने वेज में? सारी जो बॉल्स हैं आप वो सब बॉल्स को डिफरेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज सेम एज देयर आर 5 boys are there and 3 girls are there, ठीक है, and 4 teachers are there, let's say। ठीक है, क्योंकि सब डिफरेंट है तो वी आर टेकिंग एन डिफरेंट, सो 4 people have to be selected, ठीक है, in such a way that maximum 3 boys are selected, maximum 3 boys। राइट तो अब ये जो बॉयज का सिलेक्शन है बेटा वो कितने वेज में हो सकता है, कैन यू टेल मी? जो केसेस बनेंगे क्या बनेंगे हमारे? हाँ जी, हाँ जी, 0 1 2 3 के। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सो नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, आइदर 0 1 2 3, है ना। तो हमारे जो केस बन रहे हैं दैट केस इज आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाइट बॉल प्लस ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल, है ना, यही केसेस बन रहे हैं। ठीक है, व्हाइट प्लस ब्लैक एंड रेड बॉल। तो अगर रेड बॉल हमने 0 ली है तो व्हाइट और ब्लैक, ठीक है, रेड बॉल आर टोटल आर 5 आर देयर, व्हाइट एंड ब्लैक टोटल आर 7 आर देयर। तो व्हाइट एंड ब्लैक कितनी लेंगे बेटा हम?
4. 4. अगर रेड 1 है तो व्हाइट एंड ब्लैक 3. रेडिश 2, व्हाइट एंड ब्लैक इज 2. दिस इज 3, दिस इज 1. ठीक है, तो चलो पहले आप बताओ फटाफट, फर्स्ट केस में कितना होगा आंसर? यू हैव टू सिलेक्ट 4 बॉल आउट ऑफ 7. 7C4. 7C4 into 5C0 plus, नेक्स्ट बताओ सारांश. Sir, 7C3 7. into 5C1. नेक्स्ट. Sir, 7C2 into 5C2. नेक्स्ट. And then 7C1 into 5C3. चलो फटाफट सॉल्व करेंगे, आंसर बताओ. आई एम एक्सपेक्टिंग रॉन्ग आंसर्स, है ना. फटाफट चलो आराम से करो, है ना, बट करेक्ट आंसर. सर नंबर बताना. हाँ जी, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इसकी. ठीक है, 7 का मतलब पता है आपको, 7C4 दैट इज 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. 5C0 इज 1 into 7 factorial by 4 factorial, 3 factorial into 5. ठीक है, so solve it and tell me how much value you are getting. Sir, हाँ जी, सर इसमें से हम टोटल माइनस जिसमें 4 रेड है वो नहीं कर सकते? और 5 रेड वाला भी करना पड़ेगा. यस सर, 4 है एंड ना? 5. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. वेरी गुड वैभव, सारांश. ठीक है बेटा, अब ये जो 7C4 है ना, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन एज नाउ 7 6 5. ठीक है, 4 फैक्टोरियल आर गेटिंग कैंसिल्ड, 3 2 1, है ना, दैट्स फास्टर वे. दिस इज 7C3, so 4 factorial getting cancelled, 7C5 and 3 2 1. 7C2 is same as 7C5, so 7 into 6 by 2 into 1, है ना, like that you can also write it. थोड़ा धीरे धीरे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, you will get habitual to that. Answer, I need answer from everyone. I'm not proceeding till I get the answer. ठीक है, solving this you are getting your answer as 490. Okay, anyone what's so special about this question? Okay, ये इस साल का IIT का क्वेश्चन था. ठीक है, IIT मेन का क्वेश्चन था. सर दिस क्वेश्चन? हाँ जी. सर तो ये तो सबका ठीक हुआ होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जो जैसे IIT एडवांस है, ठीक है, तो अबाउट 392 का पेपर था, तो 300 से ऊपर जो ओनली 15 स्टूडेंट्स गॉट. एंड देन इफ यू हैड 270, that was 200 rank was there. 250 तक 500 rank was there. But students who are getting 130, 140, they got 4000, 5000 rank. ठीक है, एंड सेम मेन में भी ऐसे ही है. क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, प्लस यू आर नॉट मेकिंग कैजुअल मिस्टेक, है ना, तो देन यू विल succeed in that. Thing is, there are 100 chapters are there 11th 12th में, so you have to do all those 100 chapters, plus you have to revise those 100 chapters. स्टूडेंट मैनेज अच्छे से नहीं करते हैं, इसीलिए वो डिफॉल्ट कर जाते हैं. मोर देन 100 चैप्टर्स आते हैं इनफैक्ट. ठीक है, तो ये पीएनसी अगर हम अभी कर रहे हैं बेटा, तो ये पीएनसी आप वापस अगर किसी और इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं तो एक रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो अदरवाइज विल डू इट इन द एंड, विल डू द रिवीजन अगर हमारे पास सब्सटेंशियल टाइम रहा तो. बट अगर आप वो रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं तो बिलीव मी, द कॉन्सेप्ट्स विल कीप ऑन फॉरगेटिंग. x plus y plus z is 10, उसका आंसर क्या भूल जाएंगे आप. ठीक है, so IIT needs more efforts, that's it, sincere efforts. बहुत brilliant mind, then you will get top 10, top 20, top 30 ranks. But if you have a good mind and you are sincere, you will succeed.
In how many ways ting 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 can be written? हाँ जी रियाना, आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है. कैलकुलेशन एक बार वापस चेक करना बेटा. ठीक है, आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग, तो उसमें अपनी कैलकुलेशंस मैच करना. व्हाई द आंसर इज नॉट मैचिंग. ठीक है. हाँ जी, इसका आंसर कौन बताएगा? ये तो हमने अभी पिछली क्लास में किया था. सर 8 फैक्टोरियल बाय 5 By- फैक्टोरियल इंटू 3 3 फैक्टोरियल. factorial. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बट ये वाली चीज ये किसके इक्वल है? सर 8 3 5 8C5 के इक्वल है ये तो. 85. तो 8C5 को आप यहाँ पर जस्टिफाई कैसे करेंगे? परम्यूटेशन में तो हमने किया था कि हमने 8 अल्फाबेट्स हैं, उनको 8 फैक्टोरियल वे में किया. 5 आर ऑफ वन काइंड, 3 आर ऑफ अनदर काइंड. बट अब यहाँ पर कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? we are selecting ends from 8 digits alphabet. वी आर सिलेक्टिंग 5 ends. 5 एंस. 5 एंस तो है ही. 5 एंस को क्या सिलेक्ट करोगे? 5C5 वे में, 1 वे में. हाँ जी, एनीवन एल्स? Sir, जस्टिफाई. n can be selected from ease. From end and ease. कम अगेन. Sir, in how many ways can n be selected from the given sequence? ना 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 ना, मेन आई एम आस्किंग कि भाई इनसे 8 लेटर वर्ड बनना है, वो कितने वे में बन सकता है? तो पहले तो हमने परम्यूटेशन में बोला 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. बट अब कॉम्बिनेशन पढ़ते हुए हम कैसे इसको जस्टिफाई करें कि ये 8C5 के बराबर होता है, जब कॉम्बिनेशन तो सिर्फ सिलेक्शन होता है. तो वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है? आई वांट दैट जस्टिफिकेशन. वैभव, 8C5 कैसे करेक्ट है बेटा? anyone? What I want is there are 8 positions are there. हमारे पास बेटा 8 positions हैं, 8 chairs हैं. इनमें से वो 5 सिलेक्ट करो जहां पर n बैठेगा. ठीक है, वो 5 हमने कितने वे में सिलेक्ट किए? 8C5. लेट से वो 5 हमने जो सिलेक्ट किए, दोस 5 वर 1 2 3 4 एंड 5. इन 5 सीट्स पर n कितने बेस में बैठ सकता है? ओनली 1 वे, क्योंकि n तो सारे सेम है. और बाकी जो 3 है उनमें e कितने वे में आ सकता है? दैट अगेन इज 1 Sir, वे. 1 way. So my answer is 8C5 into 5C5 into 3C3. ठीक है, ये सब बुलशिट है, इनकी जरूरत ही नहीं है. आप सिर्फ 8 में से 5 से सिलेक्ट करो जहां पर n आएगा. उसके बाद only 1 way they can sit on those seats. हाँ जी, agreed. Yes, sir. ठीक है, सिर्फ Yes, sir. कॉम्बिनेशन का लॉजिक क्लियर कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन होता क्या है? ठीक है, सिलेक्शन. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, परम्यूटेशन में हमने ये किया था 1 2 3 4 5 6. सो माय आंसर इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 आर ऑफ वन काइंड, दैट इज 2 फैक्टोरियल. ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है, 6 लेटर वर्ड है, तो पहले आप किसको बिठा रहे हैं? पहले हम कह रहे हैं कि सर ये ओ को बिठा दो, है ना, ये पंगे क्रिएट कर रहा है. ठीक है, ओ को बिठाने के लिए 2 चेयर चाहिए. उन 2 चेयर्स को कितने वे में सिलेक्ट करेंगे हम? फटाफट. 6C2. उन 6C2 में आपने जब 2 चेयर को सिलेक्ट किया, तो उन 2 चेयर पे आपने ओ को बिठा दिया. अब आपके पास 4 लेटर्स हैं, 4 सीट हैं. कितने वे में बैठेंगे बेटा? 4 factorial ways. 4 फैक्टोरियल. This is 6 factorial by 4 factorial 2 factorial into 4 factorial. This gets cancelled. Answer is same as 6 factorial by 2 factorial. ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? It means selection, only selection, nothing else. हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. How many 7-digit numbers can be made from this digits such that both 6 are never together? ठीक है, कॉम्बिनेशन से करेंगे. आंसर बताओ क्या होगा? चैट बॉक्स. सर C के फॉर्म में ही दे सकते हैं सिर्फ. हाँ जी, सी के फॉर्म में.
कॉम्बिनेशन लगाना है, परम्यूटेशन नहीं लगाना अब, ठीक है। बोथ 6 आर नेवर टुगेदर। चलो लेट मी डू दिस, है ना। पहला वे बेटा इसमें क्या होगा, पहला वे तो है आपका टोटल, जो परम्यूटेशन वाली अगर हम केस करें तो टोटल माइनस व्हेन 6 आर टुगेदर, ठीक है। इसमें जो टोटल वेज हैं वो कितने वेज हैं हमारे पास, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस व्हेन 6 आर टुगेदर। अगर आपने 6 को टुगेदर कर दिया तो माइनस 6 फैक्टोरियल, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्रीड ऑन दिस? ये परम्यूटेशन जो हमने पहले किया हुआ है। -6 फैक्टोरियल क्यों? -6 फैक्टोरियल जब 6 टुगेदर थे। ओके सर, ठीक है। दिस इज टोटल माइनस व्हेन 6 आर टुगेदर, ठीक है। अब यही चीज हम कॉम्बिनेशन से देखते हैं ना, बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से देखना कि ये कॉम्बिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 तो टुगेदर है, बट क्या 1 2 3 4 5 पे कोई रिस्ट्रिक्शन है बेटा? नो सर। नो रिस्ट्रिक्शन, है ना। अगर 1 2 3 4 5 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इनको कितने वे में आप परम्यूट कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वे। 5 फैक्टोरियल वे में, है ना। ये जो 5 फैक्टोरियल वेज है, तो लेट से मैंने एक इनमें से क्या 3 4 5 2 1, ये मेरे पास एक आ गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये पोजीशन अगर मैंने फिक्स कर दी है तो जो 6 है, 6 के लिए हमारे पास कौन सी पोजीशन बची है? 1 2 3 4 5 6, 6 यहीं पर आ सकते हैं, ठीक है। अगर एक 6 यहां पर आ गया तो दूसरा 6 जो है वो इनमें से किसी एक जगह पर आएगा और वो 6 के बीच में गैप हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो 6 को बिठाने के लिए मेरे को ये जो क्रॉस है, इन क्रॉस में से मेरे को कितनी पोजीशन चाहिए जहां पर 6 बैठेंगे? हाँ जी, 2 पोजीशन। एंड हाउ आई कैन सिलेक्ट 2 क्रॉस आउट ऑफ 6 in 6 2 ways. So my answer is 5 factorial. This 5 factorial is for 1 2 3 4 5 into 6C2. This 6C2 is selecting 2 gaps out of 6 gaps for 6s to fit. जो 6 गैप है उनमें से हमें 2 गैप सिलेक्ट करने हैं जहां पर वो 6 आ सके। उन 6 की आपस में कोई परम्यूटेशन नहीं है, सो नो इश्यूज। आप लेटर ऑन चेक करें, both the things will be equal. Which both things I am talking about? One is this, another is this. Both the values are equal. ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा आगे, है ना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Small pause, see it if any doubt you have. Nope. Okay. Total number of 6-digit numbers in which only and all the 5 digits appear is. क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एंड वाला पार्ट हटाकर पढ़ो पहले, एंड से पहले वाला पार्ट, फिर एंड के बाद वाला पार्ट, और दोनों कंबाइन करके वो पूछ रहा है। हाँ जी, वो इज टेलिंग मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। सर आई थिंक आई नो। बोलो बोलो। सर ओनली में शायद है कि ये 5 तो होंगी और जो 5th होगी, जो 6th होगी वो भी इन्हीं में से होगी।
हाँ वो कह रहा है कि 13579 ओनली का मतलब है इनके अलावा कोई यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और ऑल द 5 बोल रहा है कि ये पांचों तो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो जो 6 डिजिट नंबर होगा उसमें कोई एक डिजिट जो है वो 2 बार आ रही होगी, ठीक है। और वो जो डिजिट्स है वो 13579 होंगी बस, और पांचों की पांचों जरूर आ रही होंगी एक बार। फॉलो दिस। तो हमारा जो नंबर होगा वो 6 डिजिट होगा, जिसमें 13579 दे आर कमिंग, प्लस मे बी 9 रिपीट हो रहा है या 7 रिपीट हो रहा है या 5 रिपीट हो रहा है ना, कोई एक रिपीट हो रहा होगा। हाँ जी, हाउ टू डू इट। मिली जुली सरकार चल रही है यहाँ पर। यू कैन स्पीक ऑन माइक, हाउ टू सॉल्व दिस। तो पहले हम 1 3 5 7 और 9 को कैसे भी परम्यूट कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। ओके ठीक है। और सर फिर हमें इन 5 में से कोई 2 नंबर चूज करना है, तो इनटू 5 कोई सी 2 नंबर क्यों चीज चूज करने हैं बेटा? सॉरी सर 1 करना है, तो अच्छा 5 तो 5C1 चूज कर लिया मैंने, 7 को चूज कर लिया, अब क्या करूं मैं? मैंने 7 को चूज किया, अब क्या करें? सर तो 5 फैक्टोरियल इंटू 7 हो जाएगा। इंटू 7, 7 तो नंबर चूज किया बेटा मैंने। अगर 9 करूंगा चूज तो 9 हो जाएगा इंटू। दीज आर द नंबर्स, डिजिट्स हैं ये तो। ABCDE लिया तो मैंने, फिर इंटू A हो जाएगा फिर तो। नहीं सर, क्योंकि वो जो नीचे वाला आर है वो 1 होएगा तो इसलिए। सर इंटू 5 हो जाएगा। इंटू 5 क्यों हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल में ये अरेंज हो गए, फिर 5 वेज में मैं किसी एक को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। मैंने 7 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इंटू 5 यू आर सेइंग। अब क्या करूं मैं? अब उस 7 को प्लेस भी तो करना है मुझे, यस सर। ठीक है। सर पहले हम कोई भी एक ले लेंगे तो फिर उस 6 फैक्टोरियल बाय 2 में प्लेस हो सकता है, फिर इंटू 5 कर देंगे क्योंकि वो कोई भी डिजिट हो सकता था। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट वैभव इज सेइंग इज, सर पहले जो है कोई भी एक डिजिट हम मान लेते हैं वो डबल आ रही है ना। लेट्स से 1 3 5 7 9, डबल कौन सा आ रहा है? लेट्स से 9 आ रहा है। अब इनसे 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे बेटा? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। अब दूसरा केस कौन सा होगा सारांश? 1 3 5 7 7 9, इससे कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। टोटल सर ऐसे ये कितने 5 केसेस? टाइम्स होंगे कैसे? 5 टाइम्स होंगे। सो यहाँ इंटू क्या कर दूं मैं? 6 5। फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5, राइट। यस सर। So this is your 720 by 2 is 360. 360 into 5, that is 1800. 2 सेकंड ऊपर कर सकते? ऊपर मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सर। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ऑन दिस, है ना। हाँ जी, ओके। सो यहाँ पर हमने किया क्या बेटा? यहाँ पर हमें एक डिजिट को रिपीट करना था। कौन सी डिजिट रिपीट होगी? इन पांचों में से तो कोई एक रिपीट होगी। तो वो रिपीटिंग डिजिट आप कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो? बताओ बताओ। 5C1। 5C1 में आपने वो डिजिट सिलेक्ट की जो रिपीट करेगी, ठीक है। इनटू, अगर कोई एक डिजिट रिपीट कर रही है तो कितने वेज में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 6 सो वी हैव गॉट factorial by 5 2 ऑफ वन डिफरेंट काइंड, वन इज विच इज गेटिंग रिपीटेड, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। बोथ द थिंग्स आर सेम। ये भी IIT मेन का 2020 का क्वेश्चन है। चेक करें इफ एनी डाउट। ठीक है। इसी IIT मेन के क्वेश्चन को अगर मैं एडवांस का बना दूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा।
अब ये IIT एडवांस का क्वेश्चन हो गया। 6 डिजिट की जगह अब 7 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। ऑल द 5 डिजिट्स अपीयर होने चाहिए और सिर्फ यही डिजिट्स अपीयर होने चाहिए। हाँ जी, पहला केस क्या बनेगा? तो जब फिर ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे। चलो आंसर करो। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 1 करेक्ट आंसर। चलो मिली जुली सरकार बना लो, तब भी देखते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं। हाँ जी सचित, आप क्या कह रहे थे बेटा? सर पहले सारे नंबर 1 3 5 7 9 और फिर 9 दो बार और आ जाएगा तो और 70 9 2 बार और आ गया, ठीक है। तो सर ऐसी 5 केसेस बनेंगे। ऐसे 5 केसेस बनेंगे, ठीक है। सर इसके बाद एक और बन सकता है कि तो अगर आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 5 इंटू सर 5 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। बाय 4 फैक्टोरियल। ये गलती कर दी आपने, ठीक है। IIT बेटा यही गलतियों पे है टिका हुआ है ना, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि IIT जो प्रोसीजर तो देख ही नहीं रहा है, वो तो सिंपल देख रहा है फाइनल आंसर आपका ठीक है या नहीं। और ऐसे ही ब्लैंक के साथ आंसर था, आपको या तो इंटीजर भरना होगा उसमें या फिर MCQ होगा। MCQ में तो बच जाओगे, इंटीजर में कैसे बचोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर तो किस्मत अच्छी थी, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल भी सेम होता है और बाय 4 फैक्टोरियल भी सेम होता है। तो बाय 4 फैक्टोरियल ना होकर कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। ठीक है सचिन, समझ में आया बेटा? सर नहीं तो सर 4 फैक्टोरियल कैसे आया था आपका, ये बताओ मुझे। अच्छा 9 4 टाइम्स आए थे तो 4 फैक्टोरियल। 9 4 टाइम्स थोड़ा है, 3 टाइम्स है 9 तो बेटा। ओ सॉरी सर ठीक है। सर पर ये गलत हो गया। हाँ गलत हो जाता हुआ है ना, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल छोटा आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। और ये 35 नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, this is 7654, so that is 7 6 are 42, 840 is there, 7 6 42 and 5 4 is 20. Okay, next one। और क्या बनेगा? हाँ सर जी, अगर सर 5 7799 हो जाएगा। ऐसे करो 1 3 5 7 7 9 9। हाँ जी बताओ, इसमें क्या होगा आंसर? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। That's it। इनटू सर वो देख रहा हूँ। सर इंटू 5C2। Impressive, into 5C2। ये 5C2 क्यों? पहले आप ये सिलेक्ट करेंगे कि 1 3 5 7 9 इनमें रिपीट कौन कौन करेंगे? रिपीट 2 डिजिट करेंगी, तो वो जो 2 डिजिट रिपीट करेंगी पहले उन 2 डिजिट को सिलेक्ट करो भाई। वो 2 डिजिट कितने वे में सिलेक्ट करोगे? 5 में से 2 डिजिट सिलेक्ट करनी है। उनको क्या करोगे? बाहर थोड़ा निकालोगे, उनको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। यस तो ये 1 3 5 7 7 9 9 ऐसे कितने केस बनेंगे सर? ऐसे 5C2 केस बनेंगे। और हर केस को कितने वे में आप परम्यूट करेंगे? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वे में परम्यूट करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स बिकम योर आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 5 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज 5C1 एक्चुअली है ना, प्लस 5C2 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। डन डन। यस Just see to it. Any doubts, anyone? Okay. In how many ways 7 different pictures can be hanged on 7 nails? Chat box में आंसर करेंगे everyone, है ना? Please answer it on chat box. हाँ जी वैभव, very good. On 7 या on 9? On 9 nails, 7 different pictures to be hanged on 9 nails. हाँ जी very good. Aryan, Saransh, ठीक है। So we have got 9 nails are there, out of which you have to select 7 nails on which 7 pictures will be hanged.
सो माय आंसर इज 9C7. वो 7 नेल्स तो मैंने सिलेक्ट कर ली जहां पिक्चर हैंग होंगी, बट 7 डिफरेंट पिक्चर्स टू बी हैंग, तो उन पिक्चर्स को हम परम्यूट कर सकते हैं आपस में, ठीक है. सो इनटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है. और यहीं पर अगर क्वेश्चन होता 7 आइडेंटिकल पिक्चर्स टू बी हैंग्ड ऑन 7 नेल्स, तो आपने जब 7 नेल्स सिलेक्ट कर लिए कि भाई ये इस नेल पर पिक्चर हैंग होगी, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन 7 पिक्चर्स को आप सिंपल हैंग करेंगे. देयर इज नो पर्टिकुलर परम्यूटेशन इज पॉसिबल, है ना, क्योंकि ऑल पिक्चर्स आर आइडेंटिकल. तो यहाँ पर आंसर कितना होगा? 9C7. दैट्स इट. नो इनटू 7 फैक्टोरियल, नथिंग. ठीक है. ऊपर में यहाँ पर अगर आप सिर्फ परम्यूटेशन लगाकर सॉल्व करना चाहें तो 9 नेल्स है, 7 डिफरेंट पिक्चर्स आते हैं. पहली पिक्चर उठाई, उसको आप कितनी नेल्स में, कितनी पोजीशंस में बिठा सकते हैं? 9 पोजीशंस. दूसरी पिक्चर के लिए 8 पोजीशंस, 7 पोजीशन, 6, 5, 4, 3. ठीक है. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो गया बेटा कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5. चलो इसको अभी यहाँ पर थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? अच्छा, ये यहाँ पर, हाँ जी. ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. When 5 parallel lines intersect 6 parallel lines, then how many parallelograms will be formed? ठीक है, these are 5 parallel lines, 1, 2, 3, 4, 5. These are intersected by 6 parallel lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many parallelograms are formed? कुछ छोटे पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं बेटा और कुछ बड़े पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे पैरेललोग्राम्स हैं. सो टोटल हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स विल बी फॉर्म्ड? हाँ जी, वेरी गुड वैभव. ओके, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो एक बार ध्यान देंगे. पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए यू नीड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस. वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आप कितनी लाइंस में से सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा? सर 5 और 6 में से 2 5 में से है ना. इन 5 में से आप कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करें. लेट्स से आपने नंबर 1 एंड नंबर 4 को सिलेक्ट किया है, ठीक है. और उसके बाद 6 में से आप कोई भी 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करें. लेट्स से आपने C और F को सिलेक्ट किया है, दैट इज C एंड F. सो ईच डिफरेंट परम्यूटेशन यू विल गेट a different parallelogram is there. So which 2 horizontal line and which 2 vertical line, that will decide which parallelogram you are talking about. ठीक है. So total number of parallelograms will be 5C2 is 5 into 4 by 2. 6C2 is 6 into 5 by 2, right? So this is 10 into 15, which is 150. This diagram will have total 150 parallelograms. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, हाँ जी, राइट. इसको लिख लो बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट. देन आई विल टेक बेस्ड ऑन दिस फ्यू मोर क्वेश्चंस. So if you have got M parallel lines, M horizontal parallel lines and N vertical parallel lines, so total number of parallelograms are MC2 into NC2. अब ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में स्टूडेंट्स याद करते हैं, जबकि एज इट इज दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, है ना, दिस इज अ आंसर ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, सो यू शुड राइट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
पीएनसी में स्टार्टिंग में अगर आप अपने हैंडआउट्स नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू विल हैव मे बी समवेयर अराउंड 200, बट वंस यू रिवाइज देम देन यू कैन रिवीजन मीन्स यू सॉल्व देम. जो सॉल्व हो गए उनको आप क्रॉस कर सकते हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस आर लेफ्ट आउट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देन चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर. आई एम एक्सपेक्टिंग 2 wrong answers. हाँ जी, रियाना, विजया, प्रांतिक, परिचय, निष्ठा, हरप्रीत आंसर, अर्जुन आंसर. हाँ जी, others please answer it. So what we have got here is how many horizontal lines? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6 horizontal lines, you have to select 2. So that is 6C2 ways. So you have selected, let's say, this as one horizontal line and this as another horizontal line. Then among vertical lines, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8, you select 2, 8C2. And in number of ways you select these 2 lines, you will keep on getting different rectangles. ठीक है, इनमें कुछ squares भी होंगे, but होने तो squares are also rectangle. So my answer is 8C2 into 6C2. That is my answer. ठीक है, same question as parallelogram 1. सर. हाँ जी सर, जो हमने जैसे सर जब सर परम्यूटेशन वाले करे थे क्वेश्चंस, तो सर उनका आधा पार्ट तो कॉम्बिनेशन से ही हो सकता था. आधा पार्ट नहीं, सम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है आधा पार्ट, बट हाँ बिल्कुल हो सकता था. अगर आप देखो, हमने जो इक्वेशन बनाई थी x + y + z = 10, तो हमने सिंपल लिया था 10 1s and 2 plus signs are there. So your answer will be 12 factorial by 10 factorial 2 factorial. अब आप इसको जो है कॉम्बिनेशन से देखना चाहें, ठीक है, सो वो 2 प्लस साइंस हैं, उनके लिए आप कितनी पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं 12 में से. सो या फिर 12 पोजीशन में से आप 1 के लिए पोजीशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो योर आंसर विल बी 12C2 और 12C10. इस फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं. ठीक है, बट परम्यूटेशन, प्योर परम्यूटेशन की फॉर्म में याद करना, दैट इज मोर इजियर. यस सर. चलो यहीं पर क्वेश्चन है ना, इट्स अ चैलेंज क्वेश्चन, डोंट मेक मिस्टेक. क्वेश्चन इज हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड. 8x8 का चेस बोर्ड होता है, उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग सम मिस्टेक्स हियर. चलो लेट्स आंसर इट. सेम क्वेश्चन बट स्टिल मिस्टेक्स विल बी देयर. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड. हाँ जी वैभव, करेक्ट. One mistake will be there in first 5-6 answers. हाँ जी, that's a wrong answer, Siddhant. Aryan Verma correct. Sachit correct. And Anish, Arjun, Harpreet, Nishta answer. Sir, please wait. हाँ जी, waiting. Anish, it's a wrong answer. So 2 wrong out of 5. Let's wait more. ठीक है, अर्जुन माइक पे आओ बेटा. यस सर. बेटा चेस बोर्ड में यू आर अवेयर देयर आर 8 squares are there horizontally, 8 squares are there vertically. बट वो 8 squares कितनी लाइन से बने हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आर देयर. अगर मैं यहाँ पर 8 कर लूं बेटा, so these are 8 squares are there. To make 8 squares I have to use 9 vertical lines. ठीक है, तो चेस बोर्ड में 9 vertical lines, 9 horizontal lines, they meet and they make 8x8 का chess board. ठीक है, so my answer will be
Out of 9 horizontal lines, I have to select 2. Out of 9 vertical lines, I have to select 2. So that is my answer. है ना? 8C2 into 8C2 was wrong. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So number of rectangles in a chessboard. So that is 9 vertical line. है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So answer is 9C2 into 9C2. That's my answer. Okay. How many squares are there? And how many squares are there? तो स्क्वेयर्स के लिए बेटा आप क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर देखेंगे. ठीक है, 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर में आप in how many ways you can select the horizontal lines and vertical lines. तो vertical lines 1 cross 1 में 1 way, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 ways. In 8 ways you can select pair of vertical lines so that square will be 1 cross 1. सिर्फ 1 cross 1 वाला छोटा स्क्वायर बने. Same 8 ways you can select horizontal lines. So 1 cross 1 के कितने स्क्वायर्स हैं? 8 into 8. अगर मुझे 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बनाना है बेटा, ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर जो है, आई कैन सिलेक्ट 2 वर्टिकल लाइंस इन हाउ मेनी वेज? दैट इज दिस इज 1 एंड दिस इज 1. दैट्स 1 पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन. तो यहां से आपका जो है 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बन रहा है हमारा, है ना? तो वर्टिकल लाइन कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर हमारे कितने वे में बनेंगे? 7 क्रॉस 7 वेज में. 3 क्रॉस 3 वाले 6 क्रॉस 6. These many squares will be there. Total how many squares are there? 8 square plus 7 square plus 6 square plus up to 2 square plus 1 square. These many squares are there. ठीक है वैभव, स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 square plus 2 square plus up to n square. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ठीक है, अब यहां पर हम n की वैल्यू डालेंगे 8 into 9 into 17 by 6. So this is your 3 and this is 4. Answer is 12 into 17. These many squares are there on a chessboard. ठीक है. So did you tell this formula in the NTSC class? ये फॉर्मूलाज हाँ जी NTSC JSTSC है ना. क्यूब का भी फॉर्मूला है. क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा सिद्धांत? नहीं याद. Anyone? सर n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, n into n plus 1 by 2. ये तो फर्स्ट n नंबर्स होते हैं, इनका स्क्वायर कर दो. दैट इज फर्स्ट n नंबर्स के क्यूब का सम हो जाएगा वो. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, अब आई एम गोइंग टू आस्क सम IIT क्वेश्चंस. ठीक है, रेडी? ये एडवांस का क्वेश्चन है. फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, वैभव को थोड़ी देर के लिए बैन कर देते हैं और बाकी जो है मिली जुली सरकार में क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. सो IIT में क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, हाँ थोड़े से ट्रिकी जरूर हो सकते हैं वंशीना भाई. और हम पहले 7th लाइन तक का निकालेंगे. 7th लाइन तक का. अच्छा, इतना निकाल लिया पहले. सर उसके बाद सर जो बाकी के जो बॉक्सेस है उससे हम रेक्टेंगल बनाते रहेंगे. तो सर जैसे हमने स्क्वायर में किया था ऑल्टरनेटिव वाले लाइन से, वैसे करके बाकी जो बॉक्सेस हैं बेटा, ये जो बॉक्स है ना, इससे कितने रेक्टेंगल बनेंगे? तो ये वाला भी और ये वाला भी और ये ये सर वाला. वही कह रहा हूँ सर, हम लाइन ऐसे गिनते रहेंगे. नहीं नहीं बेटा, फिर तो ये भी बनेगा. ये वाले बॉक्स को इन्वॉल्व करते हुए ये बड़ा वाला ट्रायंगल थोड़ा सा
है ना, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वाला भी बन रहा है, तो ऐसे कैसे गिनेंगे फिर, जो जिसमें सिर्फ 4 आ रहा है तो वो तो बहुत पंगे हो जाएंगे हमारे। हाँ जी, गुड वन। तो चलो पहले मुझे आप ये बता दो, है ना, कि यहां तक अगर मैं ले लूं बस, तो कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं? हाँ जी, सी की फॉर्म में। 7C2 into 6C2। वेरी गुड, 6C2, ठीक है। और अगर मैं यहां तक ले लूं ये, तो अब कितने बन रहे हैं? सर 5C2 into 8C2। 8C2, ठीक है। तो मैंने कौन से लिए? एक तो मैंने, एक मिनट बेटा, है ना, ये मैंने येलो वाले, ठीक है। ये येलो वाले फिगर में हमारे कितने रेक्टेंगल होंगे सर? इतने रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। और ये हमने फिर ग्रीन वाली फिगर ले ली, ग्रीन वाली फिगर में कितने रेक्टेंगल होंगे? सर 7C2 into 6C2। इतने रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। अब इन फिगर में ये चीज, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर, ये क्या होगा? ये माइनस रेक्टेंगल, सर, ये 2 हाँ जी, टाइम्स ऐड हो रहे हैं। 2 टाइम्स काउंट होगा ये एक रेक्टेंगल। तो अगर ये 2 टाइम्स काउंट हो गए तो इनको माइनस कर दो, तो ये प्लस हो गया और माइनस, माइनस कितना होगा? 7C2 इंटू, दैट विल बी 5C2। 5C2, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है। सो अब आप ये सीख रहे हैं तो प्लीज, है ना, वंस रिकॉर्डिंग आर पोस्टेड, गो थ्रू द वीडियो स्लोली, सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, एंड then you can, you know, highlight the questions which you want to review later on also, okay? And that's how you are making your notes side by side. One last question. Okay, let's solve this question, है ना। Question is you have to form rectangle, same thing, है ना, but only thing is ये जो shaded region है ये उस rectangle में include होना चाहिए, जो भी rectangle आप बना रहे हैं। So this is 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6. It's a critical thinking question. Okay, वैभव ने कुछ तो किया है, I can't make out what exactly is that. सर वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया उसको। किसको? उसको अगर एक्सक्लूड करके कितने बनेंगे? इसको एक्सक्लूड करके आपने कितने बनाए बताओ, कैसे बनाए आपने? सर पहले वो एक ले लिया, उसके एक साइड वाली लाइन ले ली सर, ये वाली, ये, हाँ। ओके, फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर सर इसमें कितने वो निकाल लिए, ठीक है, और ओके, फिर उसके राइट वाली ले ली, फिर उसके ओके, ऊपर वाली ले ली, फिर उसके वो, फिर उसके बाद फिर आपने ये वाले ले लिए कि इसमें हाँ कितने हैं, है ना, हाँ, और फिर और उसके बाद आपने ये ले लिए इसमें कितने हैं, ओह माय गॉड, फिर उसके बाद इस ये लेफ्ट वाला, हाँ ठीक है, फिर फिर उसके बाद आपने जो ओवरलैपिंग है उनको माइनस कर दिया, यस सर, है ना, ओके, सबको और समझ में फिर आया वैभव ने क्या किया? ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही किया, बट थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है कि बहुत लंबा बन रहा है, और इतने लंबे उसमें जो है यूजुअली जो है यू टेंड टू मेक मिस्टेक। एनी इजियर वे नॉट टू, विच इंक्लूड्स की बात है बेटा, ये नॉट एक्सक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूडिंग है ये,
सर फिर वो टोटल से माइनस कर दिया। फिर टोटल में से आपने माइनस कर दिया जो इंक्लूड नहीं कर रहे थे, एक और टर्म ऐड हो गई। तो आपके सॉल्यूशन में बेसिकली आपने 9 टर्म्स ऐड कर दी है ना, टोटल -4 विच आर इंक्लूडिंग प्लस 4 विच आर ओवरलैपिंग रीजन्स। ठीक है सर हाँ जी। सर मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, पर सर अगर हम ओवरलैपिंग वाले लेते ही नहीं है, मतलब सर अगर हम 4 से 8 वाला लेते हैं हॉरिजॉन्टली और 8 से 6 वाला, मतलब 1 से 6 वाला वर्टिकली लेते ना हैं। ना 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 ना, एक मिनट बेटा, मेरे को पॉइंट बता दो आप। ABCDEFGH, हाँ जी, कौन कौन सी लूँ मैं, बताओ। सर डी से एच, जो सर डी डी से से एच एच, हाँ, और 1 से 6 के बीच में बन रहे हैं। डी से एच और 1 से 6 के बीच में, ओके। सर ये पूरे, उसके बाद सर डी से ए डी एंड से 4 से 6। 4 से 6, 4 से 6, यस सर। डी से ए एंड 4 से 6, ओके। यस सर, ये हाँ, ऊपर वाले पूरे। तो बेटा आंसर आपने फिर ये वाला, इसको क्या किया आपने, इसको तो आपने नाराज कर दिया, ये जो बन रहा था इसको तो यस काउंट ही नहीं किया फिर आपने कहीं पे, है ना। यस सर। ठीक है, मोर इजियर वे इज, ठीक है, आपका जो रेक्टेंगल बनेगा उसको एक बार कोई एक रेक्टेंगल को बनाकर देख लो आप। ठीक है, तो अगर मैं कुछ किसी एक रेक्टेंगल को बनाकर देखूं तो वो रेक्टेंगल मेरा कुछ ऐसा बन रहा है ना। अब इस रेक्टेंगल में ये वाली लाइन को लेकर मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं बेटा, अगर मैं इसे शिफ्ट करूं तो कितनी ऑप्शंस हैं मेरे पास। इस लाइन को मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, क्या यहाँ ला सकता हूँ मैं इसे, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पर लेके आऊंगा तो ये रेक्टेंगल ही एक्सक्लूड हो गया। फॉलोइंग दिस। यस सर। तो मेरे पास लाइन 1 से रिलेटेड कितनी ऑप्शंस हैं, आई हैव टू हैव दैट लाइन अमंग फ्रॉम दिस टू, तो 2C1, इन दोनों में से एक लाइन होनी जरूरी है। ठीक है, ये जो लाइन है इससे रिलेटेड मेरे पास कितनी ऑप्शन है, वो इन दोनों में से एक होनी जरूरी है, इंटू 2C1। ठीक है, how about this line, how many options I have, this line can either be here or here or here or here। ठीक है, इन पांचों में से एक होनी जरूरी है, 5C1, another is 3C1, so my answer is 2 into 2 into 5 into 3, that is 60 rectangles will be there which will include the shaded region। हाँ जी, क्लियर है। नहीं आया। Yes, sir. ओके, सिद्धांत समझ में नहीं आया आपको बेटा। नो सर। ओके, अगर मुझे बेटा ये शेडेड रीजन इंक्लूड करना है, ठीक है, टू इंक्लूड द शेडेड रीजन आई मस्ट हैव वन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन विच शुड बी अबव दिस पिंक लाइन, इस पिंक लाइन से ऊपर होनी चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने वे में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 वे। 3 वेज में। ठीक है, एक लाइन जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन x के राइट साइड में होनी चाहिए, उसको आप कितने वे में सिलेक्ट करेंगे, 2 वे। हाँ जी, 2 वेज। 2 वेज कैसे बेटा, या तो ये हो सकती है 2, 3, 4 और 5, सो इन 5 वेज। यस हाँ जी, सर। समझ में आ रहा है, यस सर। दैट्स इट। तो इसको इंक्लूड करने के लिए आपको जो है यू हैव टू सी हाउ मेनी लाइंस आर ऑप्शंस आर अवेलेबल, है ना। तो सेम भी आपको यहाँ पर जो है आइदर यू कैन टेक 1 और 2, है ना, इन दोनों में से कोई एक लाइन हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये शेडेड रीजन है, इसके आसपास आपको रेक्टेंगल बनाना है। ऊपर कितनी लाइंस पॉसिबल है, 3 लाइंस, यहाँ पर 5 लाइंस आर पॉसिबल, हियर 2 लाइंस आर पॉसिबल, हियर 2 लाइंस आर पॉसिबल, so number of rectangles will be 2 into 2 into 5 into 3, ओके सर। right।
यस सर। Okay. चलो, next class will be on Thursday. ठीक है? See you then. I hope you have enjoyed it. So Thursday को we'll see more of combination questions on geometry. ठीक है? Geometry के questions देंगे जो permutation and combination से solve होंगे. ओके सर।